and welcome to new subject called Innovative Financial Services, IFS. Innovative means new and new. Financial services we can understand the part of services. आज की डेट में इनोवेटिव सर्विसेज क्या क्या हो सकती है? आज हम लोग जोमेटो, स्विगी और वी कैन अज्यूम द ओला उबेर सर्विसेज. दीज आर न्यू सर्विस. Okay, new techniques of service providing the same things. They are traveling industry, they are hotel industry, but the services are different. Similarly, in financial market and financial services, there are few innovations, few new techniques are there arise. How to raise the funds, how we can generate the finance for individual as well as business. So इस तरह से कुछ नया हमें सर्विसेज उसमें देखने को मिलेगा. So let's start with, I'm sharing my screen so we can understand with the help of PowerPoint presentation. So I hope my screen is visible to everyone. And here, introduction to traditional financial services. Let's start with what is it. Financial services refer to services provided by the finance industry. So it's a pure form of services provided by the finance industry. The financial service industries covered broad areas, broad range of organizations that deals with the management of money. So money can be managed in the form of bank, insurance companies, credit card companies, consumer finance companies, financial planners, advisors, stock brokers, merchant bankers, investment fund, mutual fund, hedge fund. Then some are these are the examples of the organizations of financial service industries. So the financial services are concerned with the design and delivery of advice and financial product. Not only advice but the product, and not only product but the advice. So services are like that. So financial services are concerned with the design and delivery of advice and financial product to individual and business within the above referred areas. So not only to the business but to the individual, not only advice but financial product. So this is the sum total, all the items we are incurred. So these are few organizations we can say as the financial service providers. Banking industry, capital market, where we are knowing about the primary and secondary market. Primary market is a new issue market, secondary market is just trading market, stock market, mutual funds, then merchant bankings, वेंचर कैपिटल. आज के डेट में हम लोग बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं. देयर इज वन प्रोग्राम ऑन सोनी और विच इज हॉलीवुड प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है, शार्क टैंक करके, जहाँ पे न्यू इनोवेटिव बिजनेसेस को फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करता है. एंड वहां पे वो जो फाइनेंस करते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वेंचर कैपिटल. देन इंश्योरेंस इंडस्ट्री. तो दीज वर द items of service, financial service providers. So definition, as per definitions, section 65 subsection 10 of the Finance Act 1994. There was the Finance Act 1994. This is very important date and important name, Finance Act. As you know, MCQ type question can be asked over it. So banking and financial services means the following services provided by the banking companies or financial institutions, including a non-banking financial company. Number one, financial leasing services, including equipments, leasing and hire purchase by body corporate, credit card services, merchant banking services, securities and foreign exchange broking, asset management, including portfolio management, all forms of funds management, pension fund management, custodian, depository, and trust services, but does not include cash management. Advisory and other auxiliary financial services includes investment and portfolio research advisory. So these are the list. ये सारे काम जो करते हैं, so they are calling as a banking and financial services.
जो भी यहाँ पे मेंशन किए थे वो सारे आइटम्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है. व्हाई दिस फाइनेंशियल सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट? What is the main role of service and financial services? They are providing economic growth. हमारा देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं लॉकडाउन में, जब सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, मतलब कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ था, फंड रेज नहीं हो रहा था, फंड जनरेट नहीं हो रहा था, फंड इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था. सो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाता है. So, for economic growth, it is very important that financial services need to be. प्रमोशन ऑफ सेविंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज में सेविंग्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, देन द फंड यूजर्स, देन कैपिटल फॉर्मेशन. जब कंपनीज एस्टेब्लिश होता है कैपिटल फॉर्म करने के लिए, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. जब इकोनॉमिकल ग्रोथ है दैट इज रिलेटेड विद द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कंट्रीब्यूशन टू जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. देन प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी, कभी भी चाहिए तब फंड जनरेट हो सकता है ऐसा लिक्विडिटी. And benefit to the government is they're going to charge taxes, and also their role to providing services will be reduced. So these are the examples explained in full-fledged economic growth. The financial service industry mobilize the saving of the people and channelize them into the productive investment by providing various services to people and corporate enterprises. So the economic growth of any country depends upon the savings and investment. Promotion of saving, the financial service industry mobilize the savings of the people. So हमें सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, उसके ऊपर अच्छा रिटर्न्स मिलता है, तो लोग मोटिवेट होते हैं सेव करने के लिए, पैसा सेव करके इन्वेस्ट करते हैं. कैपिटल फॉर्मेशन, जो फंड जनरेट हुआ है वो सर्विस इंडस्ट्री कैपिटल फॉर्म करने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए दे देती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बट ऑब्वियस है जब हम लोग बिजनेसेस खड़े करते हैं तो बिजनेसेस के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, बिजनेसेस के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा. ओके, देन लिक्विडिटी, जब भी फंड चाहिए होगा हमारे लिए लिक्विडिटी क्रिएट होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी करते वक्त. Then as well as benefit to the government, the presence of financial services enable the government to raise both short-term and long-term funds to meet both revenue and capital expenditure. So government के लिए ये इनकम जनरेशन हो सकता है, ट्रेजरी बिल्स के लिए, गवर्नमेंट को फंड रेज करने के लिए गवर्नमेंट यूज कर सकते हैं. So government is able to raise long-term funds by the sale of government securities in the securities market. ये security market में लोगों को ये सेल किए सकते हैं in the form of financial market. Objectives or the functions of financial services. सबसे पहला we can see in a chart mobilization and allocation of services. सेविंग्स, हमारा जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करना, एक जगह से दूसरी जगह पे डाइवर्ट करना. जिन्होंने सेव किया है, जो कनेक्शन क्या है, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स टू मोबिलाइज एंड allocate the saving efficiently and effectively to ensure overall growth of economy in one of the most important objective. हमारा सेविंग्स के ऊपर रिटर्न्स मिलने के लिए हम लोग चैनलाइज करते हैं. देन सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री, किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना, उस इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री करते हैं. जिसको फंडिंग देना है तो उसके ऊपर नजर रखते हैं, ऑब्जर्वेशन रहता है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए काम आता है. Then provide for an efficient and effective payment, clearing and settlement system. So हमारे लिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज है जहाँ पे इफेक्टिव पेमेंट सिस्टम होता है, क्लियरिंग हाउसेस है, चेक क्लियरिंग, सेटलमेंट सिस्टम, कि लोगों के ट्रांजेक्शन सेटल हो जाए, ये बिल लेके गया उसको पैसा मिल गया. सच काइंड ऑफ एक्टिविटी फंक्शंस कैन बी परफॉर्म. ऑफर पोर्टफोलियो वैल्यूएशंस, हमारे पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट करना, रिस्क एंड रिटर्न्स को अंडरस्टैंड करके पोर्टफोलियो वैल्यूएशंस करना, इन्वेस्टर्स को उनके फंड्स के रिटर्न्स दिलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है. देन प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज, लोगों को हेल्प करना, एडवाइस करना, टाइमली एंड एक्यूरेट एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से वक्त पे और कब. सो वो सर्विसेज फैसिलिटेट करते वक्त बहुत जरूरी होता है. प्रोवाइड फॉर द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. सो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांसपेरेंट, ये कोई फ्रॉड नहीं हो, इकोनॉमिक में कोई और प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए ट्रांसपेरेंट सर्विसेज होना चाहिए. एज वेल एज द प्रोवाइड कॉस्ट इफिशिएंट एंड प्रॉम्प्ट फाइनेंशियल सर्विसेज.
खर्चा नहीं होना चाहिए बहुत सारा। अभी हम लोग को फंड ट्रांसफर करना है एक जगह दूसरी जगह पे, हार्डली कुछ कमीशन लेके इमीडिएटली हो जाता है, और कुछ अमाउंट के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। सो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होना जरूरी है, फाइनेंशियल सर्विसेज ये करता है। फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स, हम लोग जब एक प्रॉब्लम, जब हम लोग नए नए एवेन्यूज अंडरस्टैंड करेंगे, फॉरफिटिंग एंड ऑल, देन यू विल कमिंग टू नो द फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है। तो फाइनेंशियल एसेट्स को बाय और सेल करने के लिए यूज होता है। देन प्रमोट द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डीपनिंग एंड द ब्रॉडनिंग। तो फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग को बढ़ाने के लिए सबके पास ये फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाने का काम होता है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? हमारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, सर्विसेज इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल मींस व्हिच कैन नॉट बी सीन, टच, फील। बराबर है, कभी सर्विसेज हमने देखा नहीं है, तो इसका एक मेन कैरेक्टर है इंटेंजिबिलिटी। Okay, then inseparability, they cannot be separate from each other. Origination and supply of financial services have to be performed simultaneously, and there should be the perfect understanding between the financial service institutions and its customers. तो यहाँ पे हम लोग separate नहीं कर सकते, inseparable है ये। वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब अलग अलग ऑप्शंस, वेरिएबल ऑप्शंस, डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, डिफरेंट डिमांड्स के लिए हम लोग अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किस तरह, किस नेचर का फंडिंग चाहिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फंडिंग है, या किस बेसिस पे फंडिंग चाहिए। आप प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख रहे हो, गोल्ड लोन को मॉर्गेज रख रहे हो, और विदाउट सिक्योरिटी कर रहे हो। डिफरेंट एवेन्यूज आर अवेलेबल कि जिसमें आप क्या बोलते हो, जिससे आप फंड रेज कर सकते हो या फंड इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको रिटर्न्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं कि यहाँ पे फिक्स रिटर्न है, यहाँ पे वॉलेटाइल रिटर्न्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिटर्न होगा। म्यूचुअल फंड्स आपको सपोर्ट करता है कि आप टेंशन मत लो, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो वेरिएबिलिटी, ये सर्विसेज जो होता है वो बहुत अलग अलग तरह का सर्विसेज मिलता है। देन डोमिनेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स। यस, financial services are dominated by human elements. It's required competent and skilled persons ये to make market the quality of financial product. अगर हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट अच्छे से डिलीवर करना है तो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट लगेगा, अच्छे लोग लगेंगे जो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनको समझ में आता है। देन इंफॉर्मेशन बस, डेफिनेटली फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री इज एन इंफॉर्मेशन बेस्ड इंडस्ट्री। इट इन्वॉल्व creation, dissemination, and the use of information. Information is an essential component in the production of the financial services. So these are the characteristics we can understand: intangibility, inseparability, variability, and dominance of human element. तो यहां तक हम लोग इसको समझ के ले सकते हैं। इसके आगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस मार्केट। फाइनेंशियल सर्विस मार्केट कैसे बना है? सो इट कैन बी अंडरस्टैंड विद थ्री पार्ट। वन इज फाइनेंशियल एसेट्स, जिसको हम लोग इक्विटी और डेट्स बोलते हैं। इक्विटी मतलब आप उस कंपनी के ओनर बनना, एंड डेट्स मतलब यू आर प्रोवाइडिंग फाइनेंस, डिबेंचर इशू करते हैं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इक्विटी के ऊपर डिविडेंड मिलेगा लेकिन वो भी फिक्स नहीं होगा, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, रिस्की कैपिटल बोलते हैं। डिबेंचर्स के ऊपर रिटर्न जो है वो फिक्स है। सो फाइनेंशियल एसेट्स इनको बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में कुछ चार पार्ट है। वन फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, एंड क्रेडिट मार्केट। एंड दैट कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जहां पे न्यू इशू होता है, आईपीओ, यस, इनिशियल पब्लिक ऑफर, नए नए शेयर्स इशू करने, तो हमारा प्राइमरी मार्केट में एंट्री होता है। एंड सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होता है, स्टॉक मार्केट, जहां पे ऑलरेडी लिस्टेड है वो कंपनी, ऑलरेडी वो बिजनेस कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, तो उसका सिर्फ शेयर बाय और सेल करना है। दैट कम्स अंडर द सेकेंडरी मार्केट। Thereafter, the financial institutions like bank and NBFC. NBFC is non-banking financial companies. So इस तरह से financial services को place किया गया है. We must understand this part. So financial service market, bank is a financial service market provider, wide range of service besides traditional banking operations. This is a huge competition amongst the different categories of banks such as PSU, public sector units banks, private sector banks, and foreign banks in terms of the services and convenience to the customers. आज हम लोग बैंकिंग में
बैंक का बहुत सारा टाइप्स देख सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है, पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है जिसको हम लोग इंटरनेशनल बैंक बोलते हैं। तो बैंकिंग में बहुत सारे चेंजेस आ गए, वो सर्विस प्रोवाइडर्स बदल जाते हैं। अगर हम लोग कोई प्राइवेट बैंक देखें तो आज आपको बैंक के ब्रांच में जाने का जरूरत नहीं, उन्होंने आपको बैंक अकाउंट ओपन करने से लेकर ऑपरेटिंग के लिए एवरीथिंग हैज बीन गिवन ऑन योर मोबाइल फोन। So electronic revolution results into new distribution and service marketing have widened the reach to the customers and reduced the cost of marketing. Definitely. आज हमारे हाथ में मोबाइल में हम लोग सारी सर्विसेज एक्टिवेट कर सकते हैं। मोबाइल में हमारा स्टॉक मार्केट का एप्लीकेशन है, मोबाइल में हमारे पास आज की डेट में बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन है। So the speed, electronic revolution, speed is also the considerable improve in financial service market. Insurance sectors have witnessed the launch of innovative product in the market. Online application for policy, faster settlement of claim are some of the example features of the current इंश्योरेंस सर्विस। आज के डेट में इंश्योरेंस में हम लोग जब कैशलेस इंश्योरेंस करना है तो आपके उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल से क्लेम जाता है और उनको वहां पे मैसेज आता है आइदर दैट इज रिजेक्टेड और द एक्सेप्टेड, और वो ऑपरेशन वगैरह कंडक्ट हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स के ऐप आ जाते हैं। Assets under management have increased sharply with increasing emphasis on transparency, ease of transport transaction, efficiency of funds management, reduction in the transaction cost, and effective regulatory control। SEBI, ओके, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल करके रखा है, इसकी वजह से कंपनीज फ्रॉड नहीं कर सकती। NBFCs have been serving the unbanked customer by pioneering into the retail assets बैक लेंडिंग एंड माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। So further NBFCs are aspirant to be one-stop shop for all financial services. लोन पे फोन वगैरह अगर हम लोग कंसेप्ट देखें तो वहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाली कोई बैंक नहीं होती, छोटा छोटा फाइनेंशियल कंपनीज होता है और वो लोन पे फोन आपको प्रोवाइड करता है। आप आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दो, आपको फोन लेके जाओ, उस बेसिस पे वो लोग लोन देते हैं, इन अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, रिस्क लेते हैं। ऑफ कोर्स क्या उनके पास सिविल रिकॉर्ड का ऑप्शंस रहता है, लेकिन उनका रिकवरी के लिए उनको प्रॉब्लम हो सकता है, देन टू दे आर प्रोवाइडिंग द फंड्स। तो ये अनटैप्ड या अनबैंक जो लोग बैंकिंग से जुड़े नहीं थे उनके लिए नॉन बैंकिंग वाले जोड़ देते। सो फाइनेंशियल सर्विसेज उसमें अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट्स ये भी है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? इट्स अ ब्लूमिंग कैपिटल मार्केट। आज की डेट में उसमें बहुत सारा स्कोप बढ़ गया है। आज हम लोग बोले ना कि हमारे सबके हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे हम लोग ये बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। सो इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, आज की डेट में हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, कौन सा ट्रांजेक्शन किधर गया रिकॉर्ड मिलेगा। रेगुलेटरी कंट्रोल है, उसके ऊपर हर एक के ऊपर एक बॉडी है जो उसको रेगुलेट करता है। ऑपरेशन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। अपॉर्चुनिटी ये है कि नए तरीके से आपको फाइनेंशियल मार्केट में गूगल पे है, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। थंब एक्सप्रेशन से आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो सकता है। राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के पास इनकम बढ़ गया है जिसको वो यूज कर सकते हैं। हाई पेनिट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, आज के डेट में मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स आ चुके हैं। देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यस मोबाइल फोन हम लोग लेके बैठे हैं, आज हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑन with the help of technology. Then generation of employment opportunities are there definitely. Threats क्या हो सकते हैं? पुअर फाइनेंशियल लिटरेसी, आज की डेट में फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट लोगों को समझते नहीं है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, लॉसेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन नहीं आता है। फाइनेंशियल स्कैम्स भी हुए हैं, आज भी हम लोग विजय मल्ल्या को याद करते हैं, नीरव मोदी को कोई भूला नहीं है। सो फाइनेंशियल स्कैम्स का डर तो हमेशा रहेगा। टू मेनी अल्टरनेटिव्स टू चूज फ्रॉम, बहुत सारे ऑप्शंस है, इससे वजह से कंफ्यूजन होने का चांसेस है। यार ये म्यूचुअल फंड में डालो कि इसमें डालो कि इसमें रिटर्न्स किधर से ज्यादा होगा, रिस्क किधर कम होगा। टू मेनी अल्टरनेटिव्स गिव्स यू द कंफ्यूजन। एग्रेसिव मार्केटिंग टैक्टिक्स, बहुत सारे कंपनीज अपना एग्रेसिवली मार्केटिंग करते हैं कि मैं हमारा ही प्रोडक्ट ले लो, तो हम लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो जाता है, एडवर्टीजमेंट में अरे 10 रुपया भरो 100 रुपये लेके जाओ वगैरह, ऐसे एडवर्टीजमेंट करते थे लोग, इन उसमें इन्वॉल्व हो जाते और लॉस कर देते।
सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट, यस। आज हम लोग हमारे मोबाइल फोन पे ओटीपी आ जाएगा, आप बता दो, और ऐसा लोगों के अकाउंट से पैसे जाते हैं, तो सिक्योरिटी के थ्रेट से, प्राइवेसी का थ्रेट से। लैक ऑफ ह्यूमन टच इन केस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन में ह्यूमन टच नहीं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता हमारा लिए कौन काम कर रहा है, तो हमें अगर वो सर्विस अच्छा नहीं लग रहा, किसको फोन करके डांटे बोले वो भी नहीं समझ में आता है। सो सच काइंड ऑफ थ्रेट्स आर आल्सो देयर। तो लेकिन हमें टाइम के साथ चलना होगा, नया क्या है वो समझना होगा, उसी हिसाब से करना होगा। ओके, देन फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, क्रेडिट मार्केट, फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इस हिसाब से अंडरस्टैंड करते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, इसको हम लोग न्यू इश्यू मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे आईपीओ आ सकते हैं। द प्राइमरी मार्केट डील्स विद दोज सिक्योरिटी व्हिच आर इशूड टू द public for the first time. And the secondary market is a trading market. After initial public offer, IPO of securities by the issuer to the public, the securities are quoted in the stock exchange, and the continuous and regular secondary market for buying and selling of securities are available. तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग अवेलेबल होता है। फॉरेक्स इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल फंड्स को हम लोग एक्सचेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। Capital market, this market deal with the long term securities. A capital market is a financial market in which long term debts over a year or a equity backed securities are bought and sold. लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट इज डीलिंग विद द फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटी व्हिच हैव द शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। आप विद इन अ ईयर, विद इन अ मंथ, कुछ दिनों के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे, दैट कम्स अंडर द मनी मार्केट। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट। Credit market refers to the market through which companies and government issues debts to investors. Investors के लिए debts issue करने का, such as investment graded bonds and debentures, ये credit market में आ जाता है। Financial assets का बात करें, so the financial asset is a tangible liquid asset that gets its value from a contractual claim. Stocks, bonds, and bank depositories are examples of the financial assets. Unlike land, property, commodities, or other tangible physical assets, financial assets do not necessarily have inherent physical worth. The main classes of financial assets are equity and debt. So the financial institutions, a financial institution is an establishment that conduct financial transactions such as investment, loans, deposits. Bank and NBFCs are the main categories of financial institutions in the financial services. तो ये फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करें। प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। अब दिस टाइम दिस मच इज ओके, ऑल द बेस्ट। नाउ इस पर्टिकुलर मटेरियल को लेके हमारे क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन सेट करके हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट करेंगे। आप अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए उसको जरूर सॉल्व करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।